غزل کے فن اور اس کی حیت پر بات کرنے کی بات اب ہم صنف غزل کا تنقیدی مطالعہ پیش کریں گے۔ ناظرین، تنقیدی مطالعے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک باشعور قاری پر شعراء حضرات کے کلام کا کیا اثر ہوا، یا اس کی تشریح و توضیح کس طرح سے کی گئی، اس کی قدر شناسی کس طرح سے کی جا رہی ہے اور کس طرح سے کرنی چاہیے، اس موضوع پر ہم اپنے اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں۔ غزل کے لغوی معنی ہیں ناظرین کہ محبوب سے یا محبوب کی باتیں کرنا، جبکہ در حقیقت غزل کے موضوعات کا دائرہ وسیع ہے۔ اس میں حسن و عشق کے لطیف جذبات بھی ہیں اور سوز و گداز بھی۔ اس میں شائقین شعر و ادب کے لیے جمالیاتی تسکین کے سر و سامان بھی مہیا ہیں اور اخلاقیات کا درس بھی۔ ناظرین، طنز و مزاح کی شیرینی کے ساتھ ساتھ صنف غزل میں ہمیں فلسفیانہ مضامین بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ان نمونوں پر۔ پیش ہے چند اشعار۔ شہاں کہ کحل جواہر تھی خاک پا جن کی، میر تقی کا شعر ہے کہ شہاں کہ کحل جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کے آنکھوں میں پھرتے سلائیاں دیکھی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے اس شعر میں دیکھا کہ یہاں پر ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور میر تقی میر اس وقت کے بادشاہ وقت پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شاہ عالم جو کہ اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کے ساتھ کیا کیا گیا کہ شاہ یعنی وہ شاہ، وہ بادشاہ کی کحل جواہر یعنی کہ جس کی خاک پا یعنی جس کے پیروں کی دھول کو لوگ سرما بنا کر لگایا کرتے تھے، کحل جواہر سمجھتے تھے، انہی کی آنکھوں میں پھرتے سلائیاں دیکھی۔ یعنی یہ وہی بادشاہ ہے جن کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئی اور انہیں اندھا کر دیا گیا۔ ناظرین، اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے جو حالات تھے اس پر کس طرح سے ایک تبصرہ کیا ہے میر تقی میر نے اپنی شاعری میں، اور اس طرح کے بے شمار نمونے اردو غزل میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی طرح سے مرزا غالب کا ایک شعر سنیے کہ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ ناظرین، اس میں ہم نے دیکھا کہ مرزا غالب سبزے کی بات کر رہے ہیں، گل کی بات کر رہے ہیں، یعنی اسی زمانے میں وہ ہارٹیکلچر کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے دماغ میں ایک بات اٹھتی ہے، استفہامیہ ایک ان کا انداز ہے یہاں پر۔ وہ کہتے ہیں کہ سبزہ و گل، یہ پانی، یہ ہوا، یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں، سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ اسی زمانے میں وہ H2O کی بات کر رہے ہیں، ہوا کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کہاں پر ایگزسٹ کرتی ہیں یہ سب چیزیں، ان کے متعلق ہمیں جانکاری ہونی چاہیے۔ جس طرح سے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سائنٹیفک مطالعے کے تحت ہم دیگر جو سوشل جو اسٹڈیز ہیں اس میں ہم ان سب چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ پانی کیا ہے، ہوا کیا ہے، سبزہ کیا ہے، گل کیا ہے، ان سب چیزوں پر ایک پورے علوم موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اب اور دیکھتے ہیں کہ موضوعات کی توسیع صنف غزل میں کس کس طرح سے ہوئی ہے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ میر تقی میر انسانی زندگی کی بے ثباتی کی بات کرتے ہیں، زندگی کا فلسفہ ایک طرح سے وہ پیش کرتے ہیں، جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہستی اپنی یعنی ہمارا جو وجود ہے، انسان کا جو وجود ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے۔ حباب یعنی بلبلا، کہہ رہے ہیں کہ ہستی اپنی اس حباب کی سی ہے کہ جو اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یعنی حباب کی عمر کتنی ہوتی ہے، بس اٹھا، کچھ پل ٹھہرا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا پانی ہی میں، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش یعنی یہ جو ہم دکھ رہے ہیں، نمائش یعنی کسی چیز کا دکھنا، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ سراب دھوکا، سراب اس کو کہتے ہیں ناظرین کہ جو ریگستان میں دور دور تک جو ریت نظر آتی ہے اس کو ہم سراب کہتے ہیں۔ یعنی کہ انسان دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو چیز چمک رہی ہے وہ شاید پانی ہے، لیکن در حقیقت وہ پانی نہیں ہوتی۔ انسان جتنا دوڑتا ہے اس پانی کی تلاش میں، وہ اور زیادہ اس کی پیاس بڑھتی ہے اور وہ دور دور تک پانی اس کو میسر نہیں ہوتا۔ اسی لیے میر تقی میر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہستی اپنی مثل حباب ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے اور
की नुमाइश एक धोखे की जैसी, एक शराब की जैसी है। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर इश्क व आशिकी या महबूब की बात नहीं बल्कि ज़िंदगी की हकीकत की बयान हो रही है। एक फ़लसफ़ियाना अंदाज़ है मीर तक़ी मीर का। इसी तरह से और भी अशार हैं। सबसे पहले हम एक टॉपिक पर और भी बात करते हैं क्योंकि जो गज़ल के लुग़वी मायने थे वो थे महबूब से या महबूब की बातें करना। तो नाज़रीन, उर्दू शायरी में जो महबूब का तासुर है वो दो तरह का इश्क है, एक इश्क हकीकी, दूसरा इश्क मजाजी। इश्क हकीकी के तहत हम अल्लाह का बयान करते हैं, यानी कि शोरा हज़रात जब कलाम में अल्लाह के हुस्न का बयान करते हैं या अल्लाह से रिलेटेड कोई भी बात अपनी वहाँ पर पेश करते हैं तो हम उसको इश्क हकीकी का शेर कहते हैं। और जब महबूब जो होता है वो जिस्म रखता है, यानी कि दुनियावी जो माशूक है उसके बारे में जब कोई बात कही जाती है, उसकी तारीफ़ की जाती है, उस पर तंज़ किया जाता है या कुछ भी उसके बारे में जब बात होती है तो हम उसको इश्क मजाजी या महबूब मजाजी का तस्करा कहते हैं। मिसाल के तौर पर चंद अशार पेश किए जाते हैं। मसलन, था मुस्तआर हुस्न से उसके जो नूर था, था मुस्तआर हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसका ही ज़र्रा ज़हूर था। मुस्तार, अब इसकी तशरीह देख लेते हैं। मुस्तार के मायने होते हैं उधार लिया गया। तो मीर तक़ी मीर कह रहे हैं कि था मुस्तार हुस्न से, यानी कि जो भी हुस्न था वो किसके हुस्न से मुस्तार लिया गया था? अल्लाह के हुस्न से। कह रहे कि था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, यानी हमने जो भी नूर दुनिया में देखा वो किसके हुस्न से मुस्तार लिया गया था? अल्लाह के हुस्न से। अब कह रहे हैं कि खुर्शीद में भी उसका ही ज़र्रा ज़हूर था, यानी खुर्शीद सूरज, सोलर एनर्जी जिसकी वजह से पूरी दुनिया एग्जिस्टेंस में है, वजूद में है, जिसकी एनर्जी से, जिसकी रोशनी से पेड़ पौधे अपना खाना पकाते हैं, उसकी बात यहाँ पर वो कर रहे हैं कि वो खुर्शीद जो पूरी दुनिया के लिए एग्जिस्टेंस का, पूरी दुनिया के लिए ज़िंदगी का एक रीज़न है, वो क्या है? उसमें भी अल्लाह के हुस्न का एक वह ज़र्रा था, यानी खुर्शीद में भी उसका ही ज़र्रा ज़हूर था। खुर्शीद के हुस्न में, उसकी रोशनी में भी क्या था? एक ज़र्रा था। किसके हुस्न का? हमारे महबूब के हुस्न का। हमारा महबूब कौन है? अल्लाह है। अल्लाह यानी हुस्न हकीकी या महबूब हकीकी। अब इसके बाद नाज़रीन हम देखते हैं कि महबूब मजाजी का जो बयान है उर्दू शायरी में वो किस तरह से किया जाता है। तो महबूब मजाजी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि वो माशूक जो कि जिस्म रखता है, यानी कि दुनियावी माशूक। तो वली का एक शेर सुन लीजिए जो कि आपके निसाब में भी शामिल है। ये सियाह जुल्फ तुझ ज़िनहदा पर, ये सियाह जुल्फ तुझ ज़िनहदा पर, नागनी जो कुएं पे प्यासी है। कह रहे कि ये काली जुल्फें जो आपकी ज़िनहदा, ज़िनहदा कहते हैं ठोड़ी को, कह रहे कि आपकी जो सियाह जुल्फ है वो ठोड़ी पर यहाँ पर इस तरह से आई है कि मसले किस तरह से लग रही है कि जैसे एक नागनी, जैसे एक नागिन कुएं पे, गहरे कुएं पर प्यासी होती है, उस तरह से हमें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि कोई नागिन कुएं पे प्यासी है। उसी तरह से आपके हुस्न का बयान कर रहे हैं कि आपकी जो सियाह जुल्फें हैं वो किस तरह से आपकी ज़िनहदा पर लटक रही हैं। इसके बाद नाज़रीन अब हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम है उसमें किस तरह से इस टॉपिक पर सवालात किए जाते हैं। तो सबसे पहले एक शेर सुन लीजिए, आतिश का है। नगौरे सिकंदर नाहे क़ब्र दारा, नगौरे सिकंदर नाहे क़ब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। तो नाज़रीन इस शेर को पढ़ने का मेरा जो मकसद था वो ये था कि इस पे 2015 में शायद ये सवाल आ चुका है कि इस शेर का शायर कौन है। तो शायर कौन होगा? आतिश। तो इस शेर को यहाँ पर पढ़ने का जो सबसे ख़ास मकसद है वो ये है कि आपको टेक्स्ट बुक का मुताला बहुत ज़रूरी है, यानी कि शोरा हज़रात ने जो कलाम कहा है उसका मुताला बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसका एक तनक़ीदी मुताला करें, यानी कि जो तनक़ीद की किताबें हैं, मसलन ये जो हाली की जो किताब है मुक़द्दमे शुरू शायरी या अदीब की जो किताब है हमारी शायरी, उसको हम ज़रूर पढ़ें। यानी कि तनक़ीदी जो किताबें लिखी गई हैं शेर के हुस्न के मुतालिक या शायरी की जो तशरीहात लिखी गई हैं अल्लामा इक़बाल और ग़ालिब
वगैरह की जो तशरीहात लिखी गई हैं उसका मुताला मैं चाहूँगी कि नाज़रीन आप खुद करें। उससे क्या होता है कि टेक्स्ट बुक का जब हम मुताला करते हैं तो हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो इस शेर को पढ़ने का यही मकसद था कि टेक्स्ट बुक का मुताला आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दूसरा सवाल देख लीजिए, आग है औलाद है, सॉरी आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहा मकसूद है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो शेर पढ़ा गया है इसमें कौन सी सनद का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि गज़ल पर जो सवालात पूछे जाते हैं वो सनद पर पूछे जाते हैं या कोई शेर दे दिया जाता है उसका मिसरे उला या मिसरे सानी पूछ लिया जाता है। तो देखिए ये जो शेर अभी हमने पढ़ा कि आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है, तो इन तमाम चीज़ों से क्या बात सामने आ रही है कि आग है, आग यानी आग, और औलाद इब्राहीम यानी कि औलाद इब्राहीम है और नमरूद है। तो जैसे कि इनका एक और भी शेर है कि क्या वो नमरूद की खुदाई थी बंदगी से तेरा भला न हुआ। तो इस शेर में हम ये देख रहे हैं कि नमरूद और इब्राहीम का किस्सा यहाँ पर रकम किया गया है और एक इशारा किया गया है किसी तारीखी वाक़े की तरफ। तो यहाँ पर कौन सी सनत हो जाएगी, सनत तलमी हो जाएगी। तो इस सवाल का जवाब यही हुआ कि इस शेर में सनत तलमी का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से अगला शेर देखिए, हस्ती अपनी हुबाब कीसी है ये नुमाइश शराब कीसी है। ये सवाल भी आ चुका है आपके नेट के एग्जाम में। इसमें पूछा गया है कि मुशब्बा बा यहाँ पर क्या है। मुशब्बा बा यानी जिस चीज से तशबीह दी जाए। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हस्ती अपनी हबाब कीसी है और ये नुमाइश किसकी तरह है, शराब कीसी। तो हबाब और शराब को हम मुशब्बा बा कह सकते हैं क्योंकि हबाब यानी कि जिसकी जिंदगी बहुत ही कम होती है और जब हम पकड़ने चलते हैं तो वो बुझ जाता है। तो इसी तरह से शराब होता है, शराब यानी धोखा, यानी कि जितना ही हम दौड़ेंगे उतना ही वो चीज़ हमसे दूर होती जाएगी। तो हबाब और शराब में मुनासिबत इस तरह से है कि हबाब की तशबीह दी जा रही है किससे, शराब से। यानी जिस तरह से हबाब का कोई भरोसा नहीं होता उसी तरह से शराब का भी कोई भरोसा नहीं होता। ठीक है नाज़रीन, इसके अलावा जो नेट में सवालात किए जा चुके हैं, गज़ल का आगाज़ किस सिंफ से किया गया। तो ये बहुत ही मशहूर सवाल है और अक्सर नेट एग्जाम में पूछा जाता है। तो नाज़रीन आपको बता दें कि सिंफ कसीदा, जिससे कि आप सभी वाकिफ होंगे, सिंफ कसीदा का जो एक जुज़ था तशबीह, उससे गज़ल को अक्स किया गया है। और फारसी जो शोरा हज़रात होते थे वो जब कसीदा कहते थे तो तशबीह का जो हिस्सा होता था उसमें सुबह का समा या रात का समा या कोई भी दुनियावी मौजू बयान किया जाता था। तो उसको इन लोगों ने और ज़्यादा डेवलप करके उसके बाद उसको गज़ल का नाम दिया। तो सवाल था कि गज़ल का आगाज़ सिंफ कसीदा के किस जुज़ से हुआ है। तो नाज़रीन ये किस जुज़ से हुआ है, तशबीह से। तशबीह, गुरेज, मदा, दुआ, ये 4 अज्जा हैं सिंफ कसीदा के, जिसमें से तशबीह यानी जो पहला जुज़ है उससे गज़ल की सिंफ की इब्तिदा हुई। इसके बाद नाज़रीन हम आगे देखते हैं कि अगला जो सवाल है 2017 में ये सवाल पूछा गया था कि बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही। इसके बाद सवाल किया गया है कि इस शेर की तकमील करनी है आपको। उसके बाद मिसरे दिए गए हैं कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग लिए वादे नो बहार चले, तुम्हारे नाम पे आएंगे हम गुसार चले, या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है। राजी पहले इस तरह के जो सवालात होते हैं उसको हम टिक करने के लिए क्या करते हैं कि मुनासिबत करते हैं, यानी कि किससे किसको तरतीब, यानी कि अगर गुल का बयान पहले मिसरे में आ चुका है तो बुलबुल का बयान होगा, ठीक है, या गुलशन का, चमन का। इस तरह से हमें देखते हैं कि तरतीब हमें किससे किसको मिलाना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तो दर्द की बात हो रही है, ठीक है, बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, दिल की बात हो रही है। तो दिल कहाँ होता है, सॉरी गम कहाँ होता है, दिल में ही होता है, ठीक है। और जो दर्द का रिश्ता है उसमें हम किसको चाहते हैं, जाहिर सी बात है कि हम यही चाहेंगे कि जब हम किसी दर्द में हो, किसी मुश्किल में हो, तो हम यही चाहेंगे कि हमारा कोई अजीज, हमारा कोई दोस्त हमारे साथ हो। तो इसका जो अगला मिसरा होगा कि बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे हम गुसार चले। यानी कि दर्द का रिश्ता अगरचे बहुत बड़ा है और जो गरीबी है
یہ دل غریب سے، یعنی کہ ہم بھلے ہی غریب ہوں لیکن اگر آپ کو کوئی غم ہے تو ہم تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے، لیکن اے غم گسار، اے ہمارے دوست، ہم تمہارے غم کے نام پر، تمہاری دوستی کے نام پر چلے آئیں گے۔ تو اس طرح سے ناظرین ہم نے دیکھا کہ اردو غزل کا ایک فنی اور تنقیدی مطالعہ۔ اس کے بعد جو ہمارا دوسرا موضوع ہوگا وہ اردو غزل سے جڑے ہوئے جتنے بھی شعراء حضرات آپ کے سلیبس میں شامل ہیں ان کو ہم کور کریں گے، اور جس میں ولی، درد، میر تقی میر، غالب، اسی طرح سے شاید 14 یا 16 آپ کے شعراء حضرات ہیں جن پر ہم تبصرہ کریں گے، اور ان تمام شعراء حضرات کا ہمیں فنی و تنقیدی مطالعہ کرنا ہے، یعنی ان پر جس طرح سے نیٹ میں جس زاویے سے نیٹ ایگزام میں سوالات کیے جاتے ہیں ہر طرح سے ہم اس ٹاپک پر تبصرہ کریں گے۔ تب تک کے لیے ناظرین جڑے رہیے ہم سے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو، اور اس کے ساتھ ہی لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے ناظرین۔ ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔